गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So, I am welcoming to you all, our guest, our host, and Professor P.K. Khosla sir. We have Manju Jatka madam, and all dignitaries, all professors, all participants, Srinivas Murthy ji. We are welcoming to you all. So it's an international program. So we have some participants from different countries also. And we know Shulini University has a very, very beautiful and serene place. But few of you have not idea about the beautifulness and sereneness of Shulini University. So we would like, first of all, I would like to call our professor, Dr. Manju Jatka madam, to introduce Shulini University. Manju Jatka madam. Good morning, ladies and gentlemen. It's my privilege to be here talking to you. I hope you can hear me. Am I audible to everyone? Subodhi, Yes, am I yes. audible? Exactly, Yes, ma'am. exactly. So this is the International Yoga Day. Actually, it's a run-up to the International Yoga Day, which is going to be held on the 21st June. But as we are going towards it, we begin our celebrations of the International Yoga Day. Yoga, as you know, is something that began with India. And in 2015, the world acknowledged it. They acknowledged it as a treasure house, as a storehouse of wisdom, knowledge, science, and so much more. So I welcome you all to this celebration of the International Yoga Day. We know how important yoga is. Yoga is important not only for our physical health, but also for our emotional, psychological, spiritual existence. And yoga is something that makes you look within. It makes you a much stronger person. It actually awakens the Superman or the Superwoman inside you. And we today are very lucky that we are living in times when yoga has become very popular. I remember when we were growing up, yoga was something that we used to hear about and we did not know much about it. But over the years, thanks to people like Baba Ramdev and others, yoga has been brought out of books, and now yoga belongs to all of us. And today, in Shulini University, we are all getting together to celebrate yoga. Yoga, which is a boon to mankind. Now, this is Shulini University, and I would like to talk a little bit about the university. From the madding crowd, where the wind whistles in the pines, and the chirping of birds mingles with the song of the crickets in the bushes, where the green meets the blue, the green of the foliage, the green of the pine trees meeting the blue of the skies. That is where Shulini University is. So Shulini University is nestled in the midst of pine-covered hills, and it is blessed by the goddess Shulini. We are all grateful to the goddess Shulini who blesses us. Our university is young, it is vibrant, it is full of promise. So even though we are young in years, we have a lot to be proud of. It is a university like none other. In academics, in research, in extracurricular activity, in outreach, and so much more.
In the 10 years of our existence, Shulini for us has built a firm foothold in the academic world, and we are determined to forge ahead. We are determined to fly higher and higher. हमारी उड़ान बहुत ऊंची होगी, आप देखते रहिएगा. So with that, I welcome you to this program being organized by the Yoga Department of Shulini University. Subodhji, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I also want to say a few words about Shulini University. We are basically situated at Himalayan region. Our state is Himachal Pradesh. In Solan district, we are situated. It's very beautiful environment here. We are at the height of 4,800 feet. So it's very, very beautiful and serene university. Shulini University has so many achievements, but one I can share here. We are selected for 8 top university from entire Asia those are doing best. So we are selected under 8 top university from entire Asia. So we have some glimpses also from Shulini University. Those have not idea about the beautifulness of Shulini can enjoy this beautiful video. In this series of guests, we have Professor P.K. Khosla. He is our Honorable Vice Chancellor at Shulini University. So now I would like to call our Professor P.K. Khosla, sir, for welcome address to all dignitaries. Professor P.K. Khosla, sir. Dr. Subodh Mala, guests of the day, students, experts on yoga, and everyone in today's gathering. You are seeing the video film of Shulini University, only a glimpse because of technical reason. We couldn't see it the way it should have been. There are 2 very characteristic things about Shulini. One, this university is not established by an industrialist. It is one like you, the teachers and the professors, retired as I would say, the Vice Chancellor of Agriculture University in Himachal. Then I became scientific advisor. I thought of entering into private education. I didn't have resources, but when the God is on your side, your determination is strong, you can do and achieve anything. Coming to the importance of yoga, I will say my personal experience. Now I am 80 years old, continuing to be the Vice Chancellor, hale and hearty, do everything all the time as a Vice Chancellor, active Vice Chancellor would do. I am in this chair for the last 15 years. So from where I am getting energy? I read one book in 1992. That was Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda.
Then I thought, wow, this is a science. It must be learned. Why shouldn't I follow it? Then I started searching different schools, and I found ultimately that the Yogananda is my guru. I attribute to my life to Yogananda and the success of Sholing University also to Yogananda. You see, I was always wondering, as I was growing in life and in career, what is the purpose of my life? Why I have come here? This question always was wandering in my mind. When I came to the fold of Yogananda, then I thought, oh, this is the answer. And as a result, I was to take the things in a different manner. And on the physical front, it culminated into, fructified into a establishment of university. At my own level, I enjoy. Daily, I spend 2.5 hours or 3 hours or 2 hours on meditation. It is intoxication for me. So, ladies and gentlemen and the boys, I take yoga, two sections of yoga. One is the physical fitness, which most of you are doing, and most of the universities are doing. The teaching is only concentrated to the physical yoga. I hardly find the transcendental yoga, where you get bliss, you get peace, you get everything. I'm getting it, that I am telling from experience. Otherwise, at the age of 80, I had celebrated my 80th birthday as a vice chancellor of a university, and that was on 18th of Feb. I'm before you. This is my own example. It's not that I blindly followed Paramahansa Yogananda. I wanted to find this type of transcendental things where people can, yogis can split their body into atoms, they can speed with the flight, with the speed of the light. I looked at many places. I went to Osho, I went to Brahmakumari, I went to different schools, and I find that my journey is with Yogananda. And I also believe that Guru is also with you. He was with you. It's not you who's looking for the Guru. Guru also finds you and supports you at the appropriate time. I once asked one of the Swamis, why at the age of 52 I have gone for yoga and meditation? He said, that was the time. This is the only science. It is the only knowledge. It is the only practice that you inherit. This is the purpose of the soul. Now I strongly believe when we are in the astral world, we promise, when we are coming here, we promise to God, oh Almighty, give me another chance, we will do our best in this next birth. But when we come here, He is very clever. He gives you desires and आपकी memory नहीं रहती. आपको याद नहीं हम पहले क्या थे. And then in the same rut you are, then incarnation, birth after birth, you continue coming here. But I can tell you, if you follow the yoga practices, even physical fitness is very important. If you do not achieve that, you cannot go to the I will say the Kriya Yoga. Because I know about the Kriya Yoga, I don't know much about the other techniques. Because in Kriya Yoga, I find you are taking in the oxygen, there is a spinal breathing, and you are not releasing carbon dioxide. If there is more oxygen for yourself, obviously there will be bliss, there will be peace, there will be health, and everything there, which I am enjoying. Because I have no control of my first 52 years of life. If any disease I suffer, I attribute to that. I wish I should have learned this when I was a youngster, like the boys who were the students of yoga at the age of 20 or 22. Then the things would have been different. Because this is a science in the future world for the householders. Earlier, it was only for the people living in the Himalayas. As Ma'am Manju has said, that when we were growing, we were not taught about this thing. No, never my mother told me. Maybe she was also not knowing. Wo to jo iya Om kar lo, Gayatri Mantra kar lo, Havan kar lo, all those things were there because we being a Arya Swaj family, I brought up in that environment. I was knowing all these things. But my mother used to think that I am an atheist, but my search was different. वो मुझे कहती थी कि प्रेम जब तू पैदा हुआ था मैं एक टांग के ऊपर ओम का जप करती थी. तुम कहाँ से नास्तिक पैदा हो गए? पर मुझे पता था मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ. मैं ये सब कुछ ये पूजा पाठ हवन करके आया हुआ हूँ. This is what I have learned. ये मुझे जरूरत नहीं थी इन चीजों की करने की. हम सब इस जर्नी से निकलते हैं. और ultimately our goal is to
to free ourselves from the bondage of life and then to immerse in the Almighty. तो उसके पास हम सब ने जाना है. वो तभी जाओगे अगर जब आपका शुद्धिकरण होगा. You are away from all vices, purified, immortality. I wonder why people are indulging in corruption. For whom? This is the law of doctrine of karma. As you sow, so shall you reap. If you do something, even you think something, even that you have to harvest. As long as you do not purify yourself, you cannot reach his home. So you will be coming to from the heaven platform to the physical form. So we in Shulni University, we with a great, I would say, inspiration. That was my mission, that we must have undergraduate, postgraduate, and doctoral education. We have now everything. We are developing the Yogananda Village. You must have seen the huts. We have some huts. We want the people should come, meditate there, research there, and read, write, and find God if possible. We are in the Himalaya. There cannot be better heaven on the physical front. So we will provide you everything what is required. Our library is known as the Yogananda Library. So Subodh has taken the effort. I must congratulate him that he has arranged this webinar where I am also talking with the students, teacher, and the scholars of the yoga, whether people are going for meditation or going for transcendental meditation or doing one thing or the other. So, dear friends, एक ही aim है life का, एक ही aim है कि उसको पाना. बाकी तो सारे जो बोलबुलैया है, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा. ये संसार तो मेरे घर में मेरा छोटा भाई he used to tell about his past birth. हमने confirm किया, वो निकला, ठीक निकला. My father left his body, he came back after death. So I have been brought up in those two circumstances, and I believe in reincarnation. I believe in all these things. I'm a strong following, and I say with personal experience, there cannot be better life. I am more happy now than I was. Even the wealth is mine. Very strange. मुझे तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज होंगी. मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं सैर करने जाता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ कार को. अगर लोग कहते होंगे ये बड़ा घमंडी है. पहले हम भी ऐसे ही सड़कों पर घूमते थे. मैं तो यही समझता हूँ परमात्मा उन लोगों को सब कुछ देगा जो बैलेंस करोगे लाइफ में. Be a good householder, be a good person, be a good nationalist, love your country, love your people, and love everybody. That should be the message of yoga. Thank you very much. I wish all the best to the participants who have assembled here. Good luck. Do spend 2 days and define the definition of new yoga. Because India is to give. Now more Americans are doing meditation daily. Otherwise, they will come from America to teach us that this is our science. The same way as Haldi, turmeric, they wanted to get it patented. We had to fight the case in the court. कल को वही रिसर्च करेंगे. हमारी यूनिवर्सिटियों में भी रिसर्च हाई एंड होनी चाहिए. Research should be coupled with integrated with the biological sciences, high-end biological sciences. हमारे एक स्टडी हुई ऐसे ही कोई we had a retreat here. There were people who are Kriya yogis or those who are above 60 years of age, because every human being has the cancer fighting capabilities. Youngsters are more, the elders, as you grow with age, it goes on decreasing. जब हमारे 20 आदमियों को ब्लड लिया गया और सैंपल से पता लगा कि हमारा ब्लड, हमारे पास कैपेबिलिटी टू फाइट द कैंसर इज जस्ट लाइक ए बॉय ऑफ 10 or 15 years old. तो ये एक प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन थी जो ब्लड से स्टडी करके. तो इस तरह की रिसर्चेज की जरूरत है, सो दैट एवरीबॉडी बिलीव्स कि यस इट्स अ रियली साइंस. अगर आप हमारे सन्यासियों से बात करेंगे, उनको नहीं जरूरत है कि तुम करो जो कुछ करना है, क्योंकि वी दे नो इट, दे हैव अटेन्ड व्हाट दे वांटेड. बट हम तो दुनियादारी में हैं. हमारे से लोग पूछते आपको क्या फायदा हुआ, तो उनको तो उसमें साइंस भी चाहिए, उनको रिसर्च भी चाहिए, टीचिंग भी चाहिए, उनको तो सब कुछ चाहिए, उनको पूजा भी चाहिए. सो आई थिंक दे एवरीबॉडी सेज householders are the lucky who are following yoga. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद sir to share your experience with us, experience from practicing yoga. So thank you sir. और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए. आपने हम लोग को श्रेय दिया प्रोग्राम के लिए. लेकिन सर ये मेरा अकेले का नहीं, मेरे साथ पूरी टीम का है. मेरे साथ डॉक्टर माला हैं, सुमित जी हैं, दीपशिखा हैं, डॉक्टर विनोद हैं,
सबसे सीनियर डॉक्टर GD शर्मा सर हैं, तो सभी के सपोर्ट से हम लोग ये प्रोग्राम कर पाए। इसमें मंजू जायका मैडम, प्रोफेसर मंजू जायका मैडम, कर्नल गिल सर, सभी के सहयोग से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, So sir. in this series, it's our great honor that we have a very senior officer from Ministry of Ayush, Dr. Basav Reddy. Dr. IV Basav Reddy sir is advisor in Ministry of Ayush, advisor in the field of yoga and naturopathy. Sir is also director at Morarji Desai National Institute of Yoga. हम लोग जो इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं, इस इंटरनेशनल योगा डे में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमेशा डॉक्टर IV बसव रेड्डी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं सर से पहले 10 सेकंड में। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था 2015 में, और पूरे राजपथ को 84 एनक्लोजर्स में डिवाइड किया गया था। Am I audible there? पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था 2015 में, और पूरा राजपथ राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक 84 एनक्लोजर्स में डिवाइड था। मुझे याद है बसव रेड्डी साहब के फिंगर टिप्स पे 84 एनक्लोजर्स होते थे, किसमें कितने लोग बैठेंगे, कौन से प्लेस में, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तो सर का बहुत बड़ा योगदान है योगा को डेवलप करने में, योगा को आगे लाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे और सेशन को ज्वाइन किया। Over to you, sir, Dr. Basav Reddy, sir. Namaskar. Okay. I start with a small prayer. Bhadram karnevi shanayama devaha भद्रं पश्ये आक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः पुष्पवाक्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय वाइस चांसलर सर, मैडम डी, and my very dear yoga friends Subodh, Dr. Subodh and Dr. Mala, and all the yoga enthusiasts, और इस वेबिनार के साथ जो भी जुड़े हुए हैं वीक्षकगण और श्रोतगण, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले मैं योग विभाग सोलनी विश्वविद्यालय के योग विभाग के अध्यक्ष और फैकल्टी मेंबर्स को और कुलपति जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ये पूर्व दिनों पर आप लोगों ने एक अच्छा वेबिनार आयोजन किया है। तो इसके लिए आपको अभिनंदन पात्र है कि जो भी संस्थाएं विश्वविद्यालय योग का छोटी छोटी कदम लेते हैं कि योग को बढ़ावा देने में, और बहुत बड़ा काम होता है। तो इसलिए सरकार की ओर से और हमारे संस्था की ओर से मैं सोलनी विश्वविद्यालय के योग विभाग को अभिनंदन करता हूँ। और मैंने मैडम के भाषण सुना और कुलपति जी का भाषण सुना। मुझे अच्छा लगा कि कुलपति जी पिछले 30-40 साल से योग अभ्यास कर रहे थे आनंद आश्रम से। उनका अनुभव उसने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे नेतृत्व मिला तो योग विभाग और भी अच्छा काम करेगा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपका यूनिवर्सिटी एशिया में एक स्थान प्राप्त किया है। तो कुछ फोटोग्राफ भी मैंने प्लेस मिला है, तो उसके लिए ऐसे स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। एकेडमिक स्टैंडर्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक एबल लीडरशिप ही उसको ऐसे अचीवमेंट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय को एक अच्छा नेतृत्व मिला है। आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरे शुभकामनाएं। इस वेबिनार के जरिए मैं सिर्फ
3 या 4 पॉइंट आपके लक्ष्य में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले योग आज बहुत प्रचार, उसमें बहुत पहलू है कि योग इज एसेंशियली स्पिरिचुअल एंड इट इज अवर कल्चरल हेरिटेज। हमेशा मेरा सेंटेंस सही से प्रारंभ होता है। जी सर। आध्यात्मिक का ये योग साधन का केंद्र बिंदु है। तो ये आध्यात्म के ओर नहीं बढ़ रहे तो योग एक व्यायाम पद्धति ढंग से हो जाएगा, सिर्फ स्वस्थ रक्षण। तो स्वस्थ रक्षण और स्वस्थ बढ़ाना है कि ये प्रारंभ है, योग का प्रारंभ है। लेकिन योग का लक्ष्य है समाधि प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना। इस लक्ष्य को हमने छोड़ दिया तो जैसे हमने बीमारी आ जाती है, दवाइयाँ लेते हैं और कुछ दिनों के बाद और बीमारी आते हैं, दवाई लेते हैं। ऐसे ही योग अभ्यास को हमने दवाई के रूप में उपयोग किया तो वी कंफाइन योगा एज ए थेरेपी, सिर्फ एज ए थेरेपी, एंड इट विल डिमिनिश द एंटायर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो योग शिक्षक दल को ये जानना चाहिए, सिर्फ वो जो भी आपके पास आते हैं उसको सिर्फ एक स्वास्थ्य रक्षण या बीमारी को सुधारने में ही पहले तो होना चाहिए, लेकिन वहीं पर रोक ले तो और बार बार वो करेंगे, 4-5 दिन करेंगे, बाद में ये बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाती है, बाद में योग से आप उसका कोई प्रयोजन हम पा नहीं पाते। So this I have seen. So you cannot treat a person if he is not using yoga as a treatment and he leaves after 5. इसको बैकएक आया है, बैकएक के लिए योग किया 4-5 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बाद में उसने योग छोड़ दिया। डायबिटीज है, डायबिटीज मैनेज हो गया, योग छोड़ दिया। ऐसा आएगा तो एक रेजिस्टेंस आ जाती है, बाद में योग को वो लोग स्वास्थ्य के लिए भी यूज नहीं कर सकते। दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। Therefore, it is very much essential to convene the practitioners to that they should practice yoga and make it as a way of life. ये आजकल का जरूरत है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा है कि आजकल कोविड-19 विपरीत परिस्थिति में योग का क्या उपयोग है? योग का 3 उपयोग है। वन थिंग इज जो कोविड पेशेंट्स है वो भी योग करके मेडिसिन के साथ योग कर लिया तो उनको योग नियंत्रण में या योग निदान में योग बहुत लाभदायक ही साबित हो रहा है। दूसरा है कि कोविड पेशेंट्स के जो संपर्क में आते हैं, फर्स्ट हैंड कॉन्टेक्ट में आते हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, कर्मचारीगण हैं और पुलिस फोर्सेस हैं, सारे एम्बुलेंस स्टाफ हैं, ये सारे हैं कि कोविड पेशेंट्स के शामिल है। आजकल होम क्वारंटाइन भी हो रहा है जो फैमिली मेंबर्स ऑफ द कोविड पेशेंट्स who are in contact with the yoga. So they need, they are who are contacting the patient. So they definitely need very good care. ये होना चाहिए. So this is the second important thing. Third one is आजकल ये कोविड के कंडीशन से lot of lockdown and other measures हो रहा है, तो इसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए। सो इमीडिएटली ये लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, वातावरण में बदलाव हो जाते हैं, बॉडी और माइंड को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सो जैसे टाइम लगता है तो तनाव शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से, जैसे हमने अभी आप वेबिनार चल रहा है, अभी वो इसका एडजस्ट करने में कई लोग बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं। सो इसके लिए मेरा माइंड एडजस्ट करने में समय ले रहा है। 2 मिनट हो गया, आपको कितना भी डिस्टर्ब करे, मैं एडजस्ट हो गया, आई एम स्पीकिंग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। होते रहते लेकिन मेरा माइंड कोरेंट हो गया। ऐसे ही योग अभ्यास करते हैं कि ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस में जो कुटुंब में परिवर्तन आ रहा है, वर्क प्लेस में कब परिवर्तन आ रहा है, प्रकृति या नेचर में परिवर्तन आ रहा है, समाज में परिवर्तन आ रहा है, उसके साथ हमें एडजस्टमेंट करना है। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस, or if you are following the principles of yoga, the philosophy of yoga is more important. So then you can adjust quickly. कुछ समय तो लगता है, लेकिन बाकी लोगों से ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग बहुत कम समय में इन चीजों के साथ हम एडजस्ट हो सकते हैं।
ये बात मान लीजिए कि हम दूसरों में बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आप को बदलाव कर सकते हैं। योग का एक सिद्धांत है, don't try to change others, don't try to change the prakriti, but adjust with the nature, adjust with the prakriti, and adjust with the environment, adjust with the conditions. So then only I can live better. ये 3 सिद्धांत है आजकल कोविड-19 के पेशेंट्स में योग का। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल सारे विशेषज्ञों के साथ 2015 में किया है। 45 मिनट्स उनका प्रोटोकॉल होता है, तो उसको हर रोज अभ्यास करना है। विशेष तौर पर शाम को थोड़ी देर तक हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास किया 15 मिनट। तो जो दिन भर काम करते हैं कि कभी कभी बॉडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो है परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। जैसे शाम को थोड़ा लाइट स्टमक है, थोड़ा कपालभाति, नाड़ीशोधन प्राणायाम, थोड़ा शवासन या योग निद्रा अभ्यास किया 15-20 मिनट, तो सारे रिफ्रेश हो जाती है, रात में सही ढंग से नींद आती है। तो कहने का मतलब है कि जो योग अभ्यास सिर्फ 15-20 मिनट नहीं करना है, कि मॉर्निंग एंड इवनिंग थोड़ा सा अपनाना का आज जरूरत बन गई है। इससे हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आहार में ऐसे पदार्थों को यूज कीजिए, करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इम्यूनिटी के लिए सहायक है। योग अभ्यास हो गया, स्लीप को क्वालिटी बढ़ गया, और आहार का भी हमने सही ढंग से ध्यान दिया, तो ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में हमारा इम्यूनिटी इतना अच्छा हो कि हमने संपर्क में भी आ गया तो भी हमें उसको मैनेज करने में या प्रिवेंट करने में बहुत लाभदायक होता है। और हमने बात करते हैं यौगिक हाइजीन। यौगिक हाइजीन में हमारा नेति, दौती, कपालभाति। नेति कपालभाति हर रोज करना है कि फ्रंटल साइनसेस हमारा क्लींस हो जाती है, तो कोई भी म्यूकस है सारे हैं वो हो जाती है। और नेति है अल्टरनेटिव डे और हफ्ते में 2 बार, उसमें वात नीति कर सकते हैं, जल नीति, सूत्र नीति कर सकते हैं। तो ऐसे हमने करने से क्या होता है कि हमारा नाजल पैसेज जो है होते सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करते क्लीन हो जाते। तीसरा है कि धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। ये अभ्यास हमने हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में कम से कम 1 बार अभ्यास करने से तो हमारा जो स्टमक वॉश, उसके साथ साथ जो कफ वगैरह है वो निर्मूल हो जाते हैं। इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सो इसको एक जैसे हमने खाना खाते हैं, सोते हैं, अलग अलग दिनचर्या करते हैं, ये यौगिक हाइजीन प्रैक्टिसेस को हमने अपनाना आजकल का जरूरत बन गया है। हमने अपने संस्थान से बहुत सारे ऐसे रिसर्च और जो भी स्टडीज चालू कर दिया है, ऐसे करने से खुद को हमने बचा लिया है। और ऐसे सिद्धांतों को अपनाने से हमें कोई डर के बिना हम रह सकते हैं, क्योंकि कोविड इज द रियलिटी ना। आप तो हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं कि एवरी जो भी 10 लोग है तो वहाँ एक कोविड पेशेंट, 10-15 लोग है वहाँ एक कोविड पेशेंट होने का संभावना ज्यादा है। बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो जरूरत है, लेकिन हम उससे बच सकते तो योग से ही बच सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करते हैं, योग करते हैं और पर्सनल हाइजीन, यौगिक हाइजीन फॉलो करते हैं। हर रोज 45 मिनट योगाभ्यास करते हैं, शाम को प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, और 14 घंटे काम करते हैं, अच्छे योग, अच्छे खाना खाते हैं स्वस्थ परिवार के साथ। इतने सारे करने से हमने एक मौका मिला है कि इस पेंडेमिक को हमने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में देख रहा हूँ। पहले से ज्यादा कम स्ट्रेस में, काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस कम है। हाइजीनिक प्रिंसिपल्स ज्यादा हम मैनेज कर रहे हैं। तो इस ढंग से हमारा जो पेंडेमिक, जो भी समस्या आती है योग में जो एक सिद्धांत है, जैसे आपको अंतर आएगा, हर्डल्स आएगा, आपको वो अपना एफर्ट ज्यादा करने के लिए। इसलिए जो भी आजकल का विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को एक अपग्रेड करने के लिए, अपना पर्सनल हाइजीन, पर्सनल लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए एक मौका मिला है। तो इस ढंग से करें। इस बार इसको करने के लिए भारत सरकार ने या परिवार के साथ घर घर में योगा एट होम, योगा विद फैमिली, क्योंकि हमने पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स करते हुए सभी योग संस्थाएं हैं, योग यूनिवर्सिटीज है, डिपार्टमेंट्स है, पर्सनल्स है, सारे योग अभ्यास करने के लिए हमें प्रोत्साहन करा। दूसरा है कि इस बार हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड भारत सरकार ने एक मंत्रालय ने किया है, वहाँ अपने योग भाग ले 21 को
दूरदर्शन के नेशनल चैनल से सीधा प्रसारण होगा। 6:30 बजे उद्घाटन समारोह होगी, 7 to 7:45 वो सीधा प्रसारण होती है। उसमें सभी लोग भाग लीजिए। जो भी भाग लेते हैं कि एक गूगल फॉर्म है हमारा YCB वेबसाइट में, वो भर लिया तो उनको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भारत सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से मिलेगा। सो उस फैमिली को इकट्ठा करके वेबसाइट्स और सोशल मीडिया से सिखाने वाले टीचर्स को योगा प्रमोटर, जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी हमने प्लेटिनम, गोल्डन ऐसे कैटेगरी बनाया है। योगा सर्टिफिकेशन board.nsc.in ये क्लिक कर दिया तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और माई योगा माई लाइफ एक ब्लॉक कॉम्पिटिशन को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने इस मन की बात में आज 21 मई को ऐलान किया है। उसमें भी हजारों लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस वेबिनार में जो भी जुड़े हैं उसमें अभी भी 21 तारीख तक समय है, वो लोग इस अभियान में भी भाग लीजिए, अपना अनुभव इसके साथ कर लीजिए। एक मास मोमेंट बन गया। लास्टली मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, योग आज एक मोमेंट बन गया। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक वेलनेस इंडस्ट्री इतना खुल गया है कि हमारे लिए भारतीयों के लिए योग इंडस्ट्री नहीं है, योग हमारा जीवन पद्धति है। हम अपना एक कुछ लोग इसको व्यापारीकरण कर रहे हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसको सख्त विरोध करता हूँ। योग हमारे जीवन शैली है, उसको सिखाने के लिए हमें एक कमोडिटी के रूप में क्यों उपयोग करना ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कर दिया तो इतना नॉलेज हमें मिलता है। जब हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, हाँ, लेकिन हमारे जीने के लिए कुछ तो चाहिए, हाँ, उतना ही हमें करने। योगा डजंट एडवोकेट लग्जरी बट योगा एडवोकेट्स लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए कितना चाहिए हम लेंगे, लेकिन उसको लग्जरी के लिए कर दिया तो आपको योग से दुख को निवारण नहीं करेंगे, दुख को आह्वान करेंगे। तो इसलिए हमें योग को आजकल एक मास मूवमेंट बन गया। तो पिछले 5 सालों में करीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। दिस इज द वर्ल्ड, कोई हमने इतना प्रचार नहीं कर रहे, वर्ल्ड बिगेस्ट वेलनेस मूवमेंट है। कोई इतना वेलनेस मूवमेंट दुनिया में ऐसे आपने देख रहा है कि एक ऐप भारत सरकार ने ये किया है। सो 13 करोड़ लोग इतना कम समय में ऐप को डाउनलोड करके उसको उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही आप योगा प्रोटोकॉल है 45 मिनट्स का, पिछले 5 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग, हमारा आंकड़ा अभी भी आ रहे हैं, हर साल हमने 12-13 करोड़ लोग उसको एक ही दिन में 21 जून को अभ्यास करते हैं। मतलब है कि इतना एक मास मूवमेंट बन गया है कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है और डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स का मात्रा बढ़ रही है। सो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वो अभ्यास करेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और ये करने के बाद उनको योग के साथ साथ और भी काम कर सकते हैं। ये बात नहीं कि हमने 100% योगी जॉब नहीं बोला, लेकिन हमने 2-3 घंटे, हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं तो वो लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सवेरे 2 घंटे 3 घंटे योग सिखाते हैं। कभी DYSP है, कभी CBI में काम करते हैं, कभी प्रोफेसर है, अंडर सेक्रेटरी है, लेकिन 2-3 घंटे सवेरे उनका हमेशा योग के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग अभी आप यूनिवर्सिटी से, हमारे इंस्टीट्यूशन से BSc MSc फुल टाइम करके आए। रिसर्च का बहुत अवकाश है, लेकिन हमारे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च का बहुत जरूरत है। तो इसी पर हमारे संस्था क्वालिटी पर ज्यादा जोर देते हैं। जहां भी हमने क्वालिटी प्रोडक्ट निकलते हैं उसका डिमांड होगा ही होगा। स्वर्णी यूनिवर्सिटी के इस योग विभाग से ऐसे क्वालिटी टीचर्स, योगा प्रोफेशनल्स, रिसर्च बाहर आए। तो मेरा शुभकामना है। तो और इस संदर्भ में मुझे आप आमंत्रित करके 2-4 विचार आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे अवकाश दिया है, उसके लिए कुलपति महोदय जी को और डीन मैडम है और सारे प्राध्यापक विशेष तौर पर सुबोध और माला मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कुलपति जी मैं एक आपको एक ही करूंगा, आपका ये दोनों है ना, ये हम तो नाम से बुलाते हैं, सुबोध और माला, आपका यूनिवर्सिटी का असेट है, उसको छोड़िए मत। और वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स है, दोनों आपके लिए असेट्स होंगे। विद्यार्थीगण भी वो बहुत सात्विक है। हाँ, मेरे साथ 5-6 साल काम किया है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तो वो हमारे साथ, मैं वहाँ खुद बाहर भेजने के लिए उनको कहा कि
क्योंकि उनको अच्छे जगह में ऐसे स्थल में उनको अवकाश मिले कि वो अपना स्पिरिचुअल ओरिएंटेड टीचर्स है दोनों। हाँ, दे आर कंप्लीटली डिवोटेड टीचर्स हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं। हाँ, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट सेपरेट, दे आर वन। सुबोध और माला हमेशा एक यूनियन है वो। हाँ, वो हमेशा दोनों सुखी रहे, स्वस्थ रहे, योग प्रचार और प्रसार में अपने आप को जीवन समर्पित करने में और इस सेवा को योग विभाग संपूर्ण ढंग से उपयोग करें, विद्यार्थी उनको उपयोग करें। मेरे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोग का जो इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। इन विषम परिस्थितियों में योग का सहारा लेके हम कैसे स्वस्थ जीवन जिएं, ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपने योग एक माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिस है, आसन, कॉमन योगा प्रोटोकॉल हम रोज कर सकते हैं, यौगिक हाइजीन कैसे रहा जाए, और मैं निश्चित तौर पर वादा कर सकता हूं सर, हम सभी शूलिनी विश्वविद्यालय के लोग, टीचर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, दूरदर्शन पर 21 जून को 6:30 से जो आपका कार्यक्रम है जरूर उसको एंजॉय करेंगे। हम आपकी प्रेयर को भी एंजॉय करते हैं फेसबुक पर सर, और जो वाईसीबी का आपने हमको मार्गदर्शन दिया उससे भी जरूर हम लोग जुड़ेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पता है आपका बहुत व्यस्त दिनचर्या है, बहुत व्यस्त शेड्यूल है, और उसके बावजूद सर आपने हमको इतना समय दे दिया। तो इस इंटरनेशनल योगा डे के समय मुझे याद है सर आपसे मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी now in the series of the guest, our next guest speaker is Professor Suresh Lal Barnwal sir from Dev Sanskriti Vishwavidyalay, Haridwar. Professor Suresh sir is a head of department of yogic science and human consciousness, and also dean of School of Indology and dean faculty of yoga and health at Dev Sanskriti Vishwavidyalay. I am requesting to Professor Suresh sir for his kind words. बहुत धन्यवाद सुबोध और माला। Thank you sir. और सबसे पहले हम अपने जो हमारे बड़े प्रिय हैं प्रोफेसर पीके खोसला सर का मैं नमस्कार करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने हमें याद किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक हमें याद रखा अपने दिल में। हम भी उन्हें भूले नहीं हैं, और इसलिए कि भाई हमारे दो बच्चे, हमारे दो टीचर्स वहाँ हमारे जो कुछ हमने यहाँ उनको दिया है वो संस्कार वहाँ बांट रहे हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं सर गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम हम इस शूलिनी विश्वविद्यालय के पूरे विश्वविद्यालय परिवार के सभी अधिकारियों का भावभरा अभिनंदन करते हैं। सभी जितने भी कुलपति हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, कुलाधिपति जी हैं, डीन फैकल्टीज हैं, हमारे जो टीचर्स हैं और इसके जो प्रतिभागीगण हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक इस ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसमें कि मेरे लिए योग एक वरदान बन के आ रहा है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास योग जैसी शक्ति है तो हम तमाम तरह की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। वैसे हम सभी लोग देख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत विषम हैं और विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो कुछ हमारी प्रकृति है, प्रकृति हमारी रुष्ट है और प्रकृति के प्रकोप चल रहे हैं। हमारे देश के पड़ोसी भी हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, और रोग बीमारी भी विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेज एक साथ हमारे सामने आ गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी WHO ने पेंडेमिक के तौर पे घोषित किया है, कोविड-19, सभी चिंतित हैं इस बात को लेके। लेकिन इस चिंता में भी हमारे पास अगर कोई लाइट है, कोई प्रकाश है, तो वो योग का मार्ग है। और अगर हम योग के जीवन को थोड़ा सा भी अपनाते हैं तो हम उस प्रकाश को पा सकते हैं जो कि योग ने हमें दिया है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान का प्रकाश हमें मिलता है, प्रज्ञा जागृत होती है, और उस प्रज्ञा से फिर हम अपने सभी पथों का जो भी शंका है, आशंका है, जो हमारी समस्या है, उसका निदान कर सकते हैं। तो जो योग है उसका मूल काम आसन प्राणायाम क्रियाएं केवल नहीं है, बल्कि उस ज्ञान प्रकाश का अवतरण करना भी है, जिसके माध्यम से हमें प्रकाश मिले, हम अपने पथ का चयन कर सकें, अपने पथ के प्रति
जब हम अगर देखें तो उस पथ के प्रति कहीं न कहीं जो मेरी कुछ भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियों का निवारण हो सके और हम बिना निर्बाध गति से, बिना किसी हिचक के बढ़ सकें। तो आज हमने जैसा कहा कि बहुत परिस्थितियां खराब है, इन परिस्थितियों में हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। वो निर्णय हमें वहीं से मिलेगा कि हम योग का अनुसरण करें। इसलिए पतंजलि ने कहा योगांग अनुष्ठाना अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। तो अशुद्धियों का निवारण भी करना है और ज्ञान का प्रकाश का अवतरण भी करना है। ये दो मुख्य उद्देश्य इस योग का है, जिसको कि हम अगर देखें तो योग सूत्र से हम जुड़ते हैं तो योग सूत्र में दो ही चीजों के लिए हमें प्रेरित करता है। पहले तो अशुद्धियां आ गई हैं और आपको पता है कि जो कोविड-19 है इसमें सबसे पहला चैलेंज है कि अशुद्धियों को हम कैसे मैनेज करें। और अशुद्धियां कहाँ से हैं? ये वायरस अशुद्धियों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, हमारे हाथ के, हमारे वस्तुओं के। आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं उसमें चेन ट्रांसमिशन हो रहा है, सोसाइटी ट्रांसमिशन हो रहा है, मेन टू मेन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो ट्रांसमिशन के विभिन्न तरीके हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एक ही विधि हमारे पास बच गई है, वो है शुचिता। और योग का जो नियम है, जो व्यक्तिक हमारे साधन है, व्यक्तिक साधन में शुचिता का परिपालन ही हमें सिखाया जाता है। और उसमें हैंड सैनिटाइजेशन से लेके और ब्रिथ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से हमें अवगत कराया जा रहा है बार बार। तो अगर हम योग के उन पथों का अनुसरण करें जो कि कम से कम प्रारंभिक पाठशाला का प्रारंभिक विषय है, तो पर भी हम इस कोविड जैसी बीमारियों से कोप अप कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे ये खत्म ही हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जो ये नियम हमारे लिए पतंजलि ने दिए थे वो आंतरिक और बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए दिए थे। अब उसको और भी थोड़ा सा व्यवहारिक करने के लिए थोड़ा सा हमें शारीरिक तौर पे भी अपनाना पड़ रहा है। हालांकि प्राचीन काल में हमने देखा है, हमारे माता पिता ने हमें शुद्धिकरण की जो विधि बताई थी, वो शुद्धिकरण हमारे घर के सामान्य व्यवहारों में सिखाया था। कोई बाहर से आता है तो उसको हाथ पैर धो के खाना खाना चाहिए। उसको थोड़ी चीजों को हम जो आज मिस कर रहे हैं, आज हम पुनः उसको स्थापित करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कोविड-19 ने हमें कह दिया कि हम हाइजीनिक अगर नहीं रहेंगे तो हम तुरंत इस वायरस के गिरफ्त में आ जाएंगे। तो योग की जो विधियां प्राचीन हो गई थी उसको अर्वाचीन किया जा रहा है, उसे नवीनतम किया जा रहा है। लोगों के जीवन से जोड़ने का एक जबरदस्त प्रयास हो रहा है जो प्रकृति चाह रही है। दूसरा, जो प्रकृति के बारे में अगर हम विचार करें तो प्रकृति तो वैसे जो त्रिगुणों वाली है, लेकिन अगर हम भगवत गीता को देखें 7वें अध्याय में तो अष्टधा प्रकृति की बात करते हैं भगवान कृष्ण, और उसमें भी परा अपरा दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा करते हैं। जो परा प्रकृति है वो कहते हैं मेरी आत्मा है, वो आत्मा ही समस्त प्रकृति का नियंत्रण करता है। तो मनुष्य भी उसी आत्मा का एक अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उस आत्मा के अंश के तौर पे अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की सत्ता से जुड़ते हैं, भागवत की उपस्थिति भी करते हैं, तो पर भी हम क्या कर लेंगे, हम उस प्रकृति पे नियंत्रण कर सकते हैं जो उनके प्रकोप के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो हम सभी से तो यही निवेदन करना चाहेंगे जितने भी प्रतिभागीगण हैं कि योग के मूल सिद्धांतों को समझें। हम उसमें केंद्र में हैं, मेरी सत्ता केंद्र में है, मेरी आत्मा केंद्र में है, और उस केंद्र के केंद्रीय सत्ता के लिए भी हम उतने ही जवाबदेह हैं। इसलिए हम केंद्र में रह के और प्रकृति की चीजों का, जो प्रकृति में एक उथल पुथल मच रहा है, हम अभी केवल कोरोना की बात करके शांत नहीं रह सकते। आपको पता है कि हम पिछले दिनों में 2 बड़े भयानक तूफानों से भी बच के निकल के आए हैं, भारत निकल के आया, और दुनिया ने कितने सारे इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप देख रहे हैं, लगातार ही देखे जा रहे हैं। वो हमारे किसी न किसी तरह उस केंद्रीय सत्ता के अनुसरण नहीं करने की वजह से है। तो हम केंद्रीय सत्ता का अवलंबन लें। उस केंद्रीय सत्ता के अवलंबन के लिए ध्यान है, हमारे अंदर धारणाएं हैं, प्रत्याहार है, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास भी करने चाहिए। आसन प्राणायाम तो हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस को जरूर इंश्योर करता है, लेकिन हमें फिजिकल हेल्थ से केवल जीवन अब पूरी संयमित नहीं रह सकता, और संचालित करना है तो हमें उस आंतरिक प्रक्रियाओं से जरूर जुड़ना पड़ेगा, जो कि हमें योग सूत्र में एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे दिया हुआ है, जिससे हम कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। इंद्रिय संयम है, इंद्रिय संयम के बाद फिर मन संयम है, मन संयम के बाद आत्म संयम है। ये सारी विधियां जो है ये प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यासों से लोगों को मिलता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी अभी समकालीन योगी हुए हैं, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद है, परमहंस योगानंद जी है, या स्वामी शिवानंद जी है, महर्षि दयानंद सरस्वती है, अगर आप महर्षि रमन है, श्री अरविंद है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, इन्होंने कोई फिजिकल योगा सिस्टम नहीं बताया, उन्होंने जीवन शैली बताया।
एक जीवन की पद्धति बताई और उसमें ध्यान और धारणा, प्रत्याहार, इन सभी चीजों को उन्होंने बहुत ही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कहा, जीवन में जीने के लिए उतारने के लिए कहा है। स्वामी योगानंद जी ने तो पूरी दुनिया में ध्यान को इतना स्थापित किया है। हम रांची गए थे तो वहां सुबह शाम का टाइम फिक्स है, सारा कैंपस बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं रहती। और हम लोगों ने महसूस किया, उस समय हम चले गए थे गलती से, तो हमें भी वहां जैसे हमारे यहाँ नादयोग होता है 15 मिनट का, वैसे वहां घंटों उस ध्यान की अवस्था में लोग बैठना चाहे नहीं बैठना चाहे, उन्हें बैठने की एक वो परमिशन रहती है और उनको करना ही पड़ता है। तो देखिए ना आप, हमारे यहाँ पद्धतियां बहुत विकसित हैं। हम इससे मतलब अगर जुड़ सके, भगवान करे हम ऐसा जुड़े इस माहौल में, क्योंकि बिना दबाव के साथ हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। प्रकृति ने हमें अंतर्मुख करने के लिए दबाव दिया है। हमें एक जो गलत ड्राइविंग पे हम निकल गए थे उसको हम कहीं कहीं पुनर् जो सो स्थापित करें और उन मूल्यों को, जो योग के मूल्य हैं, उसे हम जी सके। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि प्रज्ञा का अवतरण होगा, नया युग आएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, धरती पे स्वर्ग का अवतरण होगा। ये सारी बातें कोई मजाक नहीं है और कोई सहायता से भी नहीं होने वाली है। इसके लिए मनुष्य को ही तैयार होना पड़ेगा। जो पहली इकाई है मनुष्य, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो हम सभी को इस बात के लिए बिल्कुल, चाहे माने या ना माने, 3 चीजें करनी है। या तो हम बदलने के लिए तैयार हो जाएं, बदल जाएं, या हम नहीं बदलें तो फिर दंडित हों किसी रूप में, बीमारी के रूप में, या और किसी के रूप में मृत्यु तक हो सकता है। या सिंपल है कि साधना मार्ग को अपनाएं और बदल के, और युग को परिवर्तन करने में, युग के क्रांति संक्रांति काल चल रहा है, उसे अवतरण करने में अपनी मदद करें। और हम अगर स्वेच्छा से करते हैं तो ठीक है, और आप बिना स्वेच्छा से करें तो फिर आपको जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। प्रकृति विवश है इसके लिए। आपने अगर श्री अरविंद को पढ़ा था तो उन्होंने यही कहा था, या तो बदल जाओ या तो खत्म हो जाओ, 2 ही रास्ते हैं। तो हम बदलने के लिए तैयार रहें। हम सभी से अपेक्षा करते हैं, हमारे जितने भी योग साधक हैं, मैं भी एक योग साधक हूँ छोटा सा, तो मैं आपके सामने यही कह सकता हूँ कि आप सभी लोग इस योग साधना के मार्ग को साधना की तरह देखें। ये साधना है और साधना निरंतर करने वाली चीज होती है। पतंजलि कहते हैं सतु त्रिकाल निरंतर सत्कार सेवतु त्रिभूमि। इसके बगैर साधना नहीं पूरी होती। निरंतरता चाहिए, नियमितता चाहिए, और उसके लिए कि कभी किया कभी नहीं किया। इसलिए शायद ये आपको लॉकडाउन में डाला गया था, कुछ इसी अंतर जगत में प्रवेश करने का एक मार्ग ढूंढ सको तुम। बाहर की दुनिया तुम्हें चमक दमक वाली जो है इतनी लगी, इतनी विलासिता भरी लगी, उस विलासी दुनिया से कुछ समावेशी दुनिया की ओर जा सको, और अंदर रह के भी दुनिया के उन दुख दर्दों को महसूस कर सको आप। तो हमारे लिए प्रकृति ने जो भी निर्देश दिया, जो हमारे लिए एक आदेश ही है, उस आदेश को हमें पालन करना चाहिए पॉजिटिवली। उसके प्रति हमें जो रिएक्शन देना चाहिए वो सकारात्मक रिएक्शन देना चाहिए, विध्यात्मक चिंतन के साथ उसके साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा मेरा एक खुद का मानना है। हम सभी लोग इस प्रयास में संलग्न हैं। हमारे यहाँ गायत्री महामंत्र की साधना सिखाई जाती है। आप सबको बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि 10 करोड़ गायत्री परिवार के परिजन अभी 5 लाख की साल भर की साधना में लगे हुए हैं। सभी लोगों के मन में एक विशिष्ट साधना के लिए ललक जगाई गई है, प्रक्रिया में उन्हें डाला गया है, प्रोसेस में डाला गया है। ये प्रोसेस हमें सबको शुरू करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य में एक वांछित परिवर्तन हो। उस वांछित परिवर्तन को आकार देना, थोड़ा सा देवताओं को मदद करें, हम देव शक्तियों को मदद करें, उनके लिए हम थोड़ा सा प्रण हो जाएं, उनके प्रति हम थोड़ा सा ग्रहणशील हो जाएं। तो यही कामना है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह के वेबिनार को आयोजित करने के लिए। हम शायद अपने विषय से ज्यादा डेविएट हो गए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि जो कोविड-19 है, ये तो एक तो केवल अभी मेरे लिए छोटा सा उदाहरण है। कोई बड़ी समस्या आए तो पर भी हम हल कर सकें, ऐसे आत्मबल वाले बने, ऐसे मनोबल वाले बने, ऐसे शरीर बल वाले बने। तो हमारे सभी बलों का संचय करने का समय है, वक्त है, परमात्मा ने हमें दिया है। हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं प्रोफेसर पीके खोसला सर का। बहुत आभार, बहुत नमस्कार सर, कि आपने इन बच्चों के माध्यम से अनेकों को इस योग पद्धति से जोड़ने का अवसर दिया है। और वहाँ योग की अलख बहुत अच्छे से जग रही है। हमें बहुत उम्मीद है कि आगे वहाँ रिसर्चेज भी होंगे, लेकिन एक जीवन शैली के साथ अगर होता रहे तो वहाँ की जो उन्नति प्रगति है परमात्मा अपने आप करता रहेगा। मेरी बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और थोड़ा सा मौका देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने योग विषय में हम सभी का मार्गदर्शन किया, और मैं ऐसा देखता हूं सर कि आपके उपदेश में हमेशा महर्षि पतंजलि का वास होता है। हम सभी ऐसा अनुभव करते हैं, आप उनके सिद्धांतों का हमेशा प्रतिवाद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बताई 3 बातें सदैव याद रखेंगे, या तो बदल जाएं,
या दंडित हो, या दोनों को एक साथ करने के लिए साधना मार्ग का पालन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अगले क्रम में हमारे मिस्टर श्री श्रीनिवास मूर्ति जी हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत प्रचारक रहे हैं, साथ ही क्षेत्र स्तर की मुख्य जिम्मेदारियां निभाई और गुरुजी ने अपना पूरा जीवन योग विषय के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वर्तमान में श्री श्रीनिवास मूर्ति जी योग भारती हिमाचल के नाम से एक संस्था को इन्होंने स्थापित किया है, जो हिमाचल में योग के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। मैं निवेदन करती हूँ श्री श्रीनिवास मूर्ति जी से कि वो अब हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति नाम सुनते हुए कुछ लोगों को प्यार भी आता है, क्योंकि मैं योग नित्य करता हूँ। मैं तो कोई यूनिवर्सिटी में या पढ़ाई किया या किताब का थोड़ा बहुत किताब पढ़ा हूँ, बाकी सारे जीवन ही मेरा योग है। मैं सारे को यही अपेक्षा करता हूँ, योग केवल किताब से ये करने का नहीं है, जीवन से अनुभूति करने का है। इस कारण से जो अनुभूति मेरा हुआ है वही आपके सम्मुख में रखता हूँ। वैसा तो मैं योग में गत 40 साल से जुड़ रहा हूँ। केवल मेरा स्वास्थ्य के लिए 10 साल किया, बाद में वो देखते हुए मुझे आरएसएस ने कहा योग सारे को सिखाना है, इस कारण से मैं योग सिखाना शुरू किया। अब यहाँ तक मेरा आंतरिक शक्ति बढ़ गया। यश व्यासा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी वाले बुला के स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट, मधुमेह मुक्त भारत, उसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए। उससे मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, यानी योग पकड़ के रखे तो वो अपने आप हमको उठा सकता है। हमारा पकड़ इतना मजबूत चाहिए बस, क्योंकि भगवान के बारे में कहता है भगवान सफलता तभी देता है, हमारा परिश्रम 10% प्रामाणिक चाहिए। 90% सफलता देने के लिए भगवान तैयार बैठा है, पहले 10% तो हम पूरा करें। ये योग क्षेत्र में भी मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरे लिए योग यानी भगवान है। इतना शक्ति भक्ति क्यों आता है? क्योंकि निरंतर अभ्यास से होता है। वैसा तो जो योग के बारे में बहुत विद्वान लोग कह दिया, उसके बीच में मेरा जीवन का अनुभव कहाँ तक छूट होता है मुझे पता नहीं है, बाद में आप अपना बता सकते हैं मत। जो योग मैं समझ रहा हूँ, शरीर बुद्धि मन और आत्मा, इसको जोड़ने का एक कला है। सच्चाई में बहुत बात हम जो काम कर रहे हैं ये जुड़ते ही नहीं। शरीर कुछ काम कर रहा है, मन और कुछ काम कर रहा है, बुद्धि और काम कर रहा है, आत्म का चिंतन और कुछ हो रहा है। जब तक ये जुड़ते नहीं है, इसके संघर्ष ही हर तनाव का कारण है, हर अव्यवस्था का कारण है। इसी कारण से इसको समझना चाहिए। शरीर समझना मतलब क्या है? अन्नमय कोश पूरा समझा नहीं है। हमारा दिमाग का 2% उपयोग कर रहा है, उसमें ही इतना अहंकार बढ़ गया, पता नहीं मैं क्या हो गया हूँ। फेफड़ा का 5 लीटर कैपेसिटी है, हमने 1.25 लीटर से गुजारा कर रहे हैं। पेट बिल्कुल छोटा है, 350 सीसी, इसमें 1.5-2 किलो वजन बोझ डाल रहा है। संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कितना खाना है। पूरा साल का खाना 30 साल में खत्म कर दिया तो भगवान कहेंगे आपका राशन खत्म हो जाए, आ जाओ। इस कारण से अन्नमय कोश को समझना चाहिए। 100 किलोमीटर से लंबा नसनाड़िया है, उसका देखभाल करना है। ओंकार से उसको ऊर्जा मिलता है, याद रख लेना, क्योंकि विषय तो बहुत गहरा है। इस कारण से संक्षिप्त समय में ज्यादा विषय रखने के लिए चेष्टा करता हूँ। दोपहर के बाद जब मौका मिलता है उसका विस्तार रूप से कहूंगा। इस कारण से ये है महत्व। 5 लीटर का खून है, लाखों करोड़ों सेल्स है, वो सारे देखभाल करना है। भगवान ने 120 साल सार्थक जीवन जीने के लिए दिया है, हमने उसको कभी कल्पना नहीं करना है। हर अन्न जो खाता है वात पित्त कफ बनता है, उस दृष्टि से क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, हिसाब चाहिए कि नहीं। ये अगर हिसाब नहीं रहे तो आप चाहे 24 घंटा आसन करते रहिए, उसका असर नहीं होते। इसी कारण से प्राणमय कोश को समझना चाहिए। हर श्वास हमारा ऊर्जा भरने वाला चाहिए। हर श्वास लेने के समय मैं हनुमान का शक्ति ग्रहण कर रहा हूं सोच के ले रहा है क्या? अगर नहीं लिया
तो हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नाटक। इस कारण से हर श्वास हनुमान का पूजा है। मनोमय कोश समझ लीजिए, ये सचमुच शिव का पूजा है, क्योंकि मन कैसा है वैसा ही है। जितना भी बीमारी का चर्चा होता है मन बिगड़ने से होता है। इस कारण से मनोमय कोश को समझे बगैर हम कर रहे हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है, कुछ लोग बोलते रहते गायत्री मंत्र मुंह से, फिर चिंतन होता है रोटी खाने के लिए क्या मिलेगा। कुछ लोग तो भस्त्रिका करता रहता है, पत्नी को कहता है नाश्ता तैयार करो, यानी विचलित हो रहा है, उसका असर नहीं होते। इसी कारण से मनोमय कोश को शुद्ध रखना है। 10 मिनट तो लगाओ, क्योंकि मन क्या है, हाथी है, घोड़ा है, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहे तो वही हमारा प्राण ले सकता है। इस कारण से मनोमय कोश को समझना चाहिए। विज्ञानमय कोश बुद्धि के संबंधित है। देखिए, रावण के पास सब कुछ था, अपार शक्ति कैलाश पर्वत को हिलाने का, और उनके मनोशक्ति भी प्रबल था, प्राण शक्ति भी प्रबल था, बुद्धि शक्ति भी प्रबल रहा। सिर्फ शूर्पणखा का शिकायत, वास्तविक रूप में वो कहने गई थी राम लक्ष्मण को आई लव यू। असर फिर नाक तो कट गया, क्योंकि वो सीता मैया को खाने लगी। इस कारण से उतना जो करना था सजा दे दिया, नाक काट दिया। जाके शिकायत क्या करना था, मैं ऐसा कर लिया, मान लेना था। उसने सोच ली बदला लेना है। रावण को कहती मैं तो सीता को लेके आने वाली थी, मैया तो हमारे लिए है ना। इस कारण से मैं वहां शब्द रोका। सीता को लेने आई गई थी, सीता आपको समर्पित करना था, ऐसा रावण के सामने कहा। रावण का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, सब कुछ सर्वनाश हो गया। यानी कितना महत्वपूर्ण है विज्ञानमय कोश। बुद्धि बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाता। आखिर आनंदमय कोश है, किस काम में आनंद मिलता है, ये भगवान का काम से आनंद मिलता है। और हर काम भगवान का काम समझ के किया तो उसका असर भी होता है। इसके बगैर आप योगासन करते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, प्रवचन करते रहिए, कुछ भी असर नहीं होने वाला। ये मेरा जीवन का अनुभव है। बाकी अष्टांग योग ये सारे चर्चा होता है। मेरा निवेदन है किसी को भी योग सीखने वाले को ये सारे पहले भाषण ना दीजिए, क्योंकि वो सीखने आया है अपना बीमारी ठीक करने के लिए। उनको अपना बीमारी ठीक होने के बाद आगे बताइए। इसी कारण से यही कल्पना सारे देखते हुए मेरा मन में एक बात आ गया, वो कार्य रूप उतारने के लिए ही हमने एक केंद्र बना रहा है, जो सोलन के पास अश्विनी कट के पास एक 11 एकड़ जमीन में, वहां एक स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र बनाना। स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र बनाने का कोई मैं आसमान से उतर के नहीं आया हूं, मैं तो जो पवित्र है उसको जोड़ने के लिए आया। गो सेवा, गोमूत्र से होने वाले दवाइयां, गोमूत्र से होने वाले कृषि विकास और गो पीढ़ी के विकास, ये सारे एक हो गया। उस संबंध में कोई भी प्रशिक्षण ले ले। दूसरा है योग, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, और भी जितना भी है व्यवस्था। हमारे लिए लड़ाई किस बात का ये नहीं है, हमारा लड़ाई है बीमारी के विरुद्ध, हमारा लड़ाई है आत्मविश्वास बढ़ाना है, आत्मविश्वासहीनता नहीं होना। क्योंकि अभी कोरोना युग में बहुत लोगों का साइकोलॉजी इतना बिगड़ गया, मानसिक स्तर इतना गिर गया, बहुत लोगों ने मेरे से चर्चा भी किया है, उसका मानसिक स्तर उठाया नहीं तो ये डर के मारे बहुत लोग मर जाता है। इसी कारण से ये मानसिक स्तर उठाने के जितना भी व्यवस्था है वो सारे इकट्ठा एक ही स्थान में उपलब्ध होना चाहिए। हिमाचल तो देवभूमि है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष 1000 से ज्यादा स्थान में घूमा हूँ। इस कारण से मुझे पता है। रहने वाला मैं कर्नाटक का हूँ। मेरा हिंदी सुनते हुए बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सारा है ना, वो जैसा है वैसा है। कुछ लोग मेरा हिंदी से ही मजा लेता है, आनंद लेता है। फिर भी जो मैं घूमा हूँ हिमाचल में, वो देवभूमि प्रत्यक्ष मेरा कण कण में स्वीकार हो चुका है।
क्यों देवभूमि है? जड़ी बूटियों का अगाध भंडार है। एक एक जड़ी बूटियों का बारे में सुनने के बाद लगता है जान बचाने वाला है। संजीवनी बूटी कोई रामायण का काल का नहीं है, अभी भी विद्यमान है, उसको पहचानना नहीं चाहिए क्या? ये तीनों विषय के संगम प्रशिक्षण का केंद्र बनाना ऐसा है। आप सारे को मैं इस माध्यम से निमंत्रण करता हूं, आइए, देखिए और अपना शक्ति को जोड़िए, अपना लीजिए पूरा परिस्थिति को। ये कोई किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरा व्यवस्था का काम है। योग दृष्टि से ये सारे करना है, यही है। मेरा जीवन का लक्ष्य मैं तय कर लिया, क्योंकि ये तय करने के लिए भी मेरा 60 साल बीत गया। ये तो एक ऐसा एक शाश्वत व्यवस्था बनाना है। कोरोना क्या है, उसका बाप भी आए, सामना करने का शक्ति करना चाहिए। वास्तविक रूप में योग मतलब क्या है? योग मतलब आंतरिक शक्ति बढ़ाना, बाहर का शक्ति के ऊपर विश्वास रखना रोग है। अपार शक्ति भगवान ने दिया है, उसको याद कर लीजिए, उसको पहचान लीजिए, उसका विकास के लिए जीवन लगाइए। मैं तो समझ लिया ये एक जन्म में नहीं होगा, शायद कितना भी जन्म मिले, मानव जन्म, मैं योगासन के लिए लगाऊंगा। यही आपसे अपेक्षा है। बाकी बात बहुत कुछ है, करता हूं। आप मेरा नंबर भी लेते हुए सीधा संपर्क भी कर सकता है। बस जो मेरा अनुभूति है वो बता रहा हूँ। इसका से कोई यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड तो मेरा उतना नहीं है। हाँ, यशव्यासा यूनिवर्सिटी ने 1 साल मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर लिया था, पूरा देश में भ्रमण किया हूँ, वहाँ कुछ प्रवचन सुना हूँ, यही आधार है। और प्रैक्टिकली काम करते 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 बहुत बात जुड़ रहा है, उसका कुछ झलक मुझे बताने के लिए मौका दिया। सबको नमस्कार। एक बार ओंकार करके, क्योंकि ओंकार में इतना ऊर्जा है, सूरज से निकलने वाला शब्द ओंकार है और हर मंत्र ओंकार से शुरू होता है। हर ग्रह घूमने के समय ओंकार के स्पर्श से होता है। और मैं चैलेंज लेके बता सकता हूं, रोज 21 बार ओंकार भी कर लीजिए, आपको कोई भी वायरस कुछ नहीं कर सकते, उतना आंतरिक शक्ति बढ़ जाता है। एक बार तो मैं कहना चाहता हूं, आप भी साथ में करना तो कर लीजिए। कम से कम 25 सेकंड आना चाहिए। इस कारण से पुराना श्वास बाहर करना, पूरा श्वास भरना, साथ में उच्चारण करिए। सबको नमस्कार। एक एक व्यक्ति का नाम लेना शुरू किया तो यही ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से जो देख रहा है स्क्रीन में है या हट के गया, सारे को नमस्कार, सारे का भला हो जाए, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। योग विषय में आपने जो मार्गदर्शन दिया, अपना जो गहन अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमने आपकी मार्गदर्शन फिर लेंगे हम आपका एक और सेशन में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो मार्गदर्शन दिया। Our next and last speaker is Miss Antonita Roggi from Italy. She is the founder of Sarva Yoga at Italy and teacher of pedagogy, and she is also teaching yoga at among you, even though I am far away in Italy, and we have also many events for the International Yoga Day. I would like to send my pranams to all of you, to the respected guests of the conference. And really, it's a great pleasure for me to be in this conference, because you asked me my view of yoga, and since the beginning of my teaching yoga in Italy, Europe, and in the West, I had the feeling that yoga is, of course, a very well-structured, interesting, fantastic way of self-development. But what is not so clear, especially in the West, is that it can be a very special social discipline to improve also the consciousness and the wealth and wellness of the society. So to be in a conference in a university, a prestigious university, as I know, it's really the right place
to speak about yoga and how to spread it. I just want to make you some example of what happened in the West. It's not, especially in Europe, which is an old continent with a very strong and old culture also, it's not always so easy to import from other culture something that seems new for us, of course, even though yoga is very old and ancient. And the right way, I think, to introduce it is to show how this science discipline is, and it is exactly what I try to do, what was my commitment in spreading yoga in the West, to show that it is a very high level culture. It's not a subculture or something exotic we have to import from other countries or other cultures. And also that to give some dignity to this discipline, it is important to introduce in academic words. I don't know if it is like that in India, but in Europe, the academic world is very close, not so easy to, it's not so easy to enter in it. So we have to show the scientific aspect. And when I say scientific, I don't mean only on medical science, but also on human science. How yoga has studied and know exactly the human being and how it can help. It is personal development, of course, but this will be extremely useful for the society. So I am happy to let you know that Italy is the first country that had a yoga course, official yoga course in university. I don't mean a course for the student, their personal practice. I mean a topic on their student curriculum, and that gives marks, that gives credits in their curriculum. We teach pedagogy and yoga. So we try to explain how yoga is useful, for example, in education. This is maybe a short and a step for India, because India, with the support of government, has developed a lot of university and teaching and high-level teachings of yoga. But in the West, it's not like that, because there are no rules for yoga and no official accreditation. So to enter, at least in one or two universities where I teach, with this official topic, it's really an historical. I know I had some information of Sholini University, and I have been very much impressed that you are putting together the real higher culture of today, of modern society, and the needs for the young people in the society, but also with the tradition and the course of yoga. That's really great. And I would like that this was the scheme or the program of our university too in Italy. It will take time, but who knows. I really wish all the success you deserve, because I understand the commitment that all of you have in this program for educating young, and educating young is the only way to save society and the earth. So I'm sure you will have a very successful conference and webinar, and I wish all the best, and my sincere pranam to all the guests. I would like to be in touch with them directly, but I'm sure we will have some more occasions. So the best of my heart and my wishes to Sholini University and all of. So in the last, I know our time is already running out. We have taken 27 minutes extra. So we have to sum up this session. So in the last of this, I would like to request our Professor Manju Jaidkar, vote of thanks, ma'am. Thank you, Subodh ji. योग चीज ही ऐसी है, जब इसमें लीन हो जाते हैं तो समय का पता ही नहीं लगता. तो हमारा सेशन भी थोड़ा लंबा खिंच गया है, but on behalf of Subodh and Mala, on behalf of Sholini University and all of us, I would like to thank the speakers who have spared their time and joined us today. Dr. Basav Reddy, his talk was very instructive indeed, and he told us about yogic kriyas on a daily basis, how it helps us, and especially in the present times, practicing yoga is very essential. Professor Suresh Barnwal from Hyderabad talked about how yoga awakens the light inside you. Gyan Prakash yoga se hota hai. And he told us about how it purifies the body. And he exhorted us to go back to the basics, go back to nature, because that is the only answer for us.
Either we adapt to the changing situation, either we adapt or we just perish. And of course, nobody wants to perish. So we must adapt. We must go back to nature. Srinivas Murthy ji ne humse baat ki. He's the founder of Yog Bharati in Himachal Pradesh. And he's one person who's dedicated his whole life to yoga. And his advice to us is that we must practice Sanyam. We must practice moderation in our daily lifestyle. We must have self-control. And we must practice yoga, which will help us to become strong. We will become strong within. And finally, there was Antoinetta Rozzi. Antoinetta Rozzi, buongiorno, Senora. I'm sorry we could not hear you because of the technical glitches, but perhaps we'll have another occasion to listen to you again. So thank you very much, all of you. And I would request all the participants to reconvene again at 3:30 for the next session, when we have Dr. Srinivas Murthy and we have Dr. Satish Dattatreya Pathak. So with that, thank you very much. Namaskar. Dhanyavad. The last, we have Shanti Mantra, Sarve Bhavantu Sukhina. So join your palms together. Before Shanti Mantra, I want to introduce हमारा अगला सेशन 3:30 से 5 बजे तक है. श्रीनिवास मूर्ति जी, जैसा मंजू मैम ने बोला, और दत्तात्रेय पाठक जी. ये पूरा टेक्निकल सेशन होगा, थेरेपी बेस्ड सेशन है. शांति मंत्र. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.